Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 9 of the chapter Electricity. The previous lecture I may discuss the parallel combination of resistors. So we have already finished the series combination and parallel combination. So lecture number 8 पर्यंत आम जी कनसेप्ट पढ़ीचे ताऊपर आम किसी क्वेश्चन सॉल्व करवा एंड बेसिकली आम क्वेश्चन सॉल्व करवा फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. So the first question is on the board. The question कौन देइछि? We have three resistors R1, R2 and R3. R1 ର value केते 4 ohm, R2 equal to 3 ohm and R3 equal to 6 ohm. And they are connected as shown in the diagram. गोटे बैटरी अछि. The battery is having a potential difference of 12 volt. So question कौन देइछि? Question देइछि you have to find the total resistance of the circuit. So we have to calculate what is the total resistance of the given circuit, and next we have to find the total current flowing in the circuit. तमने बैटरी रो केते अमाउंट रो करंट बाहरुचे, and then the potential difference across R1. So we have to find three things. First one is to find or to calculate the total or the equivalent resistance of the combination. Then we have to find the total current flowing in the circuit, and then we have to find the potential difference across this R1 means 4 ohm resistor. So let us solve the question. तो जब मैं फिगर को देखिबा then आमे देखि परिबा जे R2 and R3 they are connected in parallel. ठीक अछि? R2 and R3 are in parallel. ठीक अछि? So if they are parallel तो R2 और R3 रो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते आसीबो ताकू हम लिखु छी Rp. Rp माने कोन? द पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3. तो सेटा केते हे जिवो हमें जानि छै इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय देयर सम. त माने 3 into 6 by 3 plus 6. ठीक अछि? R2 into R3 by R2 plus R3. ओके, और तमे चाहिले तमे यूज करि परिबो 1 by Rp equal to 1 by R2 plus 1 by R3 ताकू आमे भी यूज करिके सॉल्व करि परिबा. तो Rp रे वैल्यू केते आसीबो? एटा आसी जिवो 18 by 9 जोटा हबो 2 ohm. ठीक अछि? त माने R2 और R3 को आमे रिप्लेस कर दी परिबा यूजिंग ए सिंगल रेजिस्टर हैविंग वैल्यू केते 2 ohm. तो जदि आमे फिगर को टिके रिड्यूस करिबा तो फिगरटा केमती आसीबो? एटा थला R1 जोटा होची 4 ohm and I have replaced these two resistors R2 and R3 by the single resistance that is Rp जहार वैल्यू होची केते 2 ohm. ठीक अछि? Okay, now this Rp is in series with R1. त माने ए जो 2 ohm अछि this 2 ohm is in series with R1. तो एबे R1 and Rp are in series. ठीक अछि? तो एबे आमे दे बाहर करिबा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rs सेटा केते हे जिवो R1 plus Rp. We have to add the individual resistances. तो एटा हबो 4 ohm plus 2 ohm. The answer will be 6 ohm. ठीक अछि? So the equivalent resistance but the total resistance of this combination is केते 6 ohm. So this is the answer of the first bit. Second bit कौन देछि? What is the current in the circuit? What is the total current in the circuit? देखो आमे once बाहर कर देले what is the total resistance, then आमे आराम से बाहर करि परिबा what is the total current. तो total current रा फॉर्मूला कोन? I रा फॉर्मूला कोन? ना total voltage by total resistance. Total voltage divided by total resistance. ठीक अछि? सो टोटल वोल्टेज केते अछि? टोटल वोल्टेज अछि 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस केते? दैट इज इक्वल टू 6 ohm. 6 ohm. So that will be 2 ampere. Volt by ohm is ampere. 12 by 6 is equal to 2. ता माने सर्किट रे जो करंट फ्लो होछि से करंट रे वैल्यू केते? द वैल्यू ऑफ द करंट इज 2 ampere. This is the answer to the second bit. Next आसीबो थर्ड बिट. थर्ड बिट कौन पचारिछि? पचारिछि जे व्हाट इज द वोल्टेज बा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
R1 across the 4 ohm resistor. तो आम देखा ये जो 2 एम्पियर करंट फ्लो होची दिस 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 4 ओम. तो गोटे पर्टिकुलर रेजिस्टर अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो तार फार्मूला कोन तार फार्मूला होची से रेजिस्टेंस इनटू केते करंट फ्लो होची द वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. तो V केते आसीबो V आसी जीवो I इनटू R. तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होची एंड द रेजिस्टेंस इज केते 4 ओम सो दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट. ठीक अछि ता माने 12 वोल्ट रु 8 वोल्ट एठी आसीबो. ठीक अछि तो आउ केते पहुंचला आउ पहुंचला 4 वोल्ट. तो देखो आमे एई जो दुटा फिगर ड्रा करचे दिस टू फिगर्स आर सेम दे आर आइडेंटिकल. डिफरेंस खाली कोन अछि ना एठी आमे जो नेथले R2 आउ R3 को आमे रखितले पैरेलल रे we have replaced the two resistors by using a single resistance जो होची इक्विवेलेंट 2 ओम करचे. तो आमे कोन देखले एठी ना जते 2 एम्पियर करंट फ्लो होची तो R1 अक्रॉस रे आमे 8 वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस पाउचे किंतु बैटरी रो टोटल वोल्टेज केते अछि 12 वोल्ट अछि. तो 12 वोल्ट रो 8 वोल्ट R1 अक्रॉस रे आसुची. तो RP अक्रॉस रे माने ए जो 2 ओम अछि 2 ओम अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो द वोल्टेज विल बी 4 वोल्ट. 12 माइनस 8 केते हिजबो 4 हिजबो. तने 8 रे 4 मिसले आंसर आसीबो 12 वोल्ट. ठीक अछि सो RP अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो 4 वोल्ट. आ मन रखिथाओ व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम. त माने R2 अक्रॉस रे वोल्टेज जहां आसीबो R3 अक्रॉस रे वोल्टेज से आसीबो and that voltage is equal to the voltage across their equivalent resistance by voltage across RP. This RP is the equivalent of R2 and R3. ता माने RP across रे जहा voltage अछि सेही voltage ता R2 across रे थिबो आ सेही voltage R3 across रे थिबो. ठीक अछि ता माने 4 वोल्ट रहिबो 3 ओम across रे 4 वोल्ट भी रहिबो 6 ओम अक्रॉस रे. ठीक अछि काहे कि ना एई जो दुईटा पॉइंट अछि एई दुईटा पॉइंट भितरे पोटेंशियल डिफरेंस होछि केते 4 वोल्ट. ठीक अछि तो जदी मो एई दुईटा पॉइंट भितरे गोटे सिंगल रेजिस्टर लगेबी किबा मल्टीपल रेजिस्टर यूज करबी तो सबु रेजिस्टर अक्रॉस रे वोल्टेज सेम आसीबो. ओके सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. So now we will go to the next question. So now look at the next question. Question kon dechi na a resistor has a resistance of 176 ohm. How many of these resistors should be connected in parallel so that their combination draws a current of 5 ampere from a 220 volt supply line. ठीक अछि तो क्वेश्चन kon dechi we have a resistor और से रेजिस्टर वैल्यू केते 176 ओम. ठीक अछि तो से पचाला जे आमे ए टाइप रो केतेटा रेजिस्टर को कनेक्ट करबा इन पैरेलल so that the combination that parallel combination will draw a current of 5 ampere from a 220 volt supply line. ता माने टोटल वोल्टेज केते कहिला 220 वोल्ट कहिला एंड टोटल सर्किट रो करंट केते कहिला 5 एम्पियर कहिला. ठीक अछि तो माय क्वेश्चन इज जदी गोटे सर्किट रे 5 एम्पियर करंट फ्लो होची एंड वोल्टेज हमें सप्लाई करचे 220 वोल्ट देन व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट. तो आंसर आसीबो वोल्टेज बाय करंट ता माने 220 वोल्ट बाय 5 एम्पियर जोडा हे जिवो 44 ओम. ठीक अछि 44 ओम एंड आमे ए रेजिस्टेंस केमिति पाइचे ना बाय connecting a number of resistors in parallel having each resistor having a resistance of 176 ohm. तो से पचारिछि जे आमे 176 ओम रो रेजिस्टर केतेटा कनेक्ट कले एमती केतेटा कनेक्ट कले इन पैरेलल आमे 220 वोल्ट सप्लाई रु 5 एम्पियर करंट को ड्रा करि परिबा. तार मीनिंग कोन how many 176 ohm resistors should be connected in parallel so that we get equivalent resistance of 44 ohm. काहे कि 220 वोल्ट रु 5 एम्पियर करंट ड्रा करिबार मीनिंग कोन से सर्किट रो टोटल रेजिस्टेंस केते हबो 44 ओम. ठीक अछि तो मैं जानि छे
if identical registers are connected in parallel, जदि n टा identical register connect हेबे in parallel तो सही केस रे r equivalent रो फॉर्मूला केते हे जिवो r by n हुए। ठीक अछि, एटा हमें डिस्कस करथले लास्ट क्लास रे। if we connect a number of identical registers in parallel तो सही केस रे equivalent resistance केते आसीबो r by n आसीबो। तो r माने कोन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रो वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम एटा केते पाइचे 44 ओम पाइचे, r केते 176 ठीक अछि ओम बाय n हमको n बाहर करिवर अछि। तो n केते हे जिवो n हे जिवो 176 ओम बाय 44 ओम दैट विल बी इक्वल टू 4। ता माने जदि हमें चारिटा रेजिस्टर को लगेबा each having value n 176 ohm in parallel, then that combination will draw a current of 5 ampere from a 220 volt source। ठीक है, so in this way you can solve this question। and now we will go to the next one। so now look at the next question। next question कौन देइछि ना n identical resistors are first connected in series and then connected in parallel। find the ratio of rs to rp। तो सी कौन कहिछि we have n number of resistors and each resistor are or all the resistors are identical। ता माने सबु resistor resistance same। let us say the resistance of each resistor is केते r। ठीक है, so first I will connect all of them in series। all the n resistors will be connected in series and then I will again connect them in parallel। तो rs आउ rp रो रेशियो बाहर करिवर अछि। तो मैं जानि छे if n identical resistors are connected in series then rs केते हे जिवो rs हे जिवो n into r। and if the same n number of resistors are connected in parallel तो rp केते हे जिवो rp हे जिवो r by n। से पचारि छी जे rs आउ rp रो रेशियो केते हबो। तो rs होची nr, rp होची r by n। तो r r कटि जीवो n ऊपर को पळेबो आंसर आसीबो n स्क्वायर इज टू 1। ठीक अछि, तो rs by rp आसीबो n स्क्वायर इज टू 1। ताले यदि पचारथिबो क्वेश्चन rp by rs केते हबो तो आंसर आसीबो 1 is to n स्क्वायर। ठीक अछि, सो रिमेंबर दिस वैल्यू rs by rp for identical resistors will be n square is to 1 and rp by rs will be 1 is to n square। ठीक अछि, so in this way you can solve this question। and now we will go to the next one। so look at the next question। question kon deichi we have a circuit diagram। so in the circuit diagram we have two resistances are connected in series। the value of this one is 5 ohm but the value of this one is unknown to us। suppose this is r and here we have a battery। the battery रे value kete v volt कहि दिछि। the potential difference is v volt and given kon देछि कहिछि जे 5 ohm resistor across रे voltage केते अछि 10 volt अछि। ठीक अछि, and across this unknown resistance the voltage is 6 volt। तो से पछरला कोन what is the current through the 5 ohm resistance। 5 ohm resistance रे केते current flow होछि। ठीक अछि, so first we have to calculate what is the current through 5 ohm resistance। तो देखो एठी आमे बहुत इजीली बाहर कर दे परिबा जे 5 ओम रेजिस्टेंस रे केते करंट फ्लो होची। काहे कि ना 5 ओम अक्रॉस रे वोल्टेज केते अछि 10 वोल्ट अछि। तो दे फास्ट बाहर करिबा जे करंट थ्रू 5 ओम, करंट थ्रू 5 ओम, 5 ओम केते हबो आई केते हे जिवो आई हे जिवो v by r। को भी हम लिखिबा ना देखिबा 5 ओम अक्रॉस रे केते वोल्टेज अछि। तो 5 ओम अक्रॉस रे अछि 10 वोल्ट रो वोल्टेज आउ द रेजिस्टेंस इज केते 5 ओम तो ढाई जिवो 2 एम्पियर। ता माने 2 एम्पियर रो करंट फ्लो होची अक्रॉस 5 ओम। ठीक अछि, दिस इज द आंसर द फर्स्ट बिट। सेकंड बिट कोन देछि व्हाट इज द करंट थ्रू r। r थ्रू रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो हबो। दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन काहे कि हमें जानि छे इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट रिमेन सेम। तो दिस 5 ओम रेजिस्टेंस एंड r दे आर इन सीरीज। तो जो 2 एम्पियर करंट फ्लो होची से 2 एम्पियर करंट r थ्रू रे भी फ्लो हबो। ठीक अछि, लाइक दिस 2 एम्पियर करंट विल आल्सो फ्लो थ्रू
the resistance R because they are in series. So the second bit answer कौन हबो current through R is केते हबो सेम 2 एम्पियर आसीबो. थर्ड बिट कौन देछि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R R रो वैल्यू केते हबो. अच्छा किन बाहर करिबा देखो ए जो फर्स्ट केस रे कौन देथिला फर्स्ट केस रे रेजिस्टेंस गिवन थिला वोल्टेज गिवन थिला करंट पचार थिला. तो आमे वंस करंट पाई गले आमे कौन देखले ए R रे भी 2 एम्पियर रो करंट फ्लो हबो आउ वोल्टेज केते आसुची 6 वोल्ट. ठीक अछि तो आमे भी देखिबा जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R. वैल्यू ऑफ R आमे केमति बाहर करिबा ना वोल्टेज जोना अछि 6 वोल्ट व्हाट इज द करंट 2 एम्पियर तो R केते हबो एटा हे जिवो 6 वोल्ट बाय 2 एम्पियर वोल्टेज बाय करंट करले आमे पाई जिबा द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सो 6 वोल्ट बाय 2 एम्पियर विल बी इक्वल टू 3 ओम. त माने R केते R हबो 3 ओम. ठीक अछि देन यदि पचारला जे व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस तो केते हबो द टोटल रेजिस्टेंस बा RS इक्वल टू 8 ओम. 5 ओम प्लस 3 ओम सीरीज रे ऐड हे जाए तो केते हबो आंसर आसीबो 8 ओम आसीबो. तो फोर्थ बिट कौन पचारची फोर्थ बिट पचारची जे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी. ये जो V लिखाई छी V रो वैल्यू केते हबो. सो स्टूडेंट्स वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन कौन हुए द टोटल बैटरी वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड among all the resistors in series combination. तो एठी अछि 10 वोल्ट एठी अछि 6 वोल्ट तो हम ऐड कर दबा 10 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट द आंसर विल बी 16 वोल्ट. ठीक अछि त माने हम जो बैटरी यूज करिचे से बैटरी रो टोटल वोल्टेज केते आसीबो द टोटल वोल्टेज विल बी 16 वोल्ट. ठीक अछि 10 plus 6 is 16 volt. So in this way you can solve this question and now we will go to the next one. So now look at the next question. Next question kon deichi a wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces. These 5 pieces are connected in parallel and the combination has a resistance R2. Then the ratio R1 is to R2 equal to this. तो से कौन कहला जे हम पाखरे गोटे वायर अछि से वायर रो रेजिस्टेंस केते R1 केते R1 and we cut the wire into 5 equal pieces 1 2 3 4 5. ठीक अछि आमे कोन कले ना ए वायर को हमें पांचटा इक्वल पीस रे कट कले. ठीक अछि so we will get 5 wires 5 small wires and those 5 pieces are connected in parallel and that combination has a resistance R2. So what is the value of the ratio of R1 is to R2. तो देखो आमे जानते जदि आमे गोटे वायर को कट करूचे सो ओनली लेंथ चेंज होची द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम. एटा हम डिस्कस करिचे स्ट्रेचिंग आउ कटिंग भितरे डिफरेंस अछि. ठीक अछि सो व्हेन यू कट ए वायर आमे गोटे वायर को जेतिकीटा इक्वल पीस रे कट करिबा ईच पीस रो रेजिस्टेंस केते हे जिवो 1/n टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस. ठीक अछि तो जो टोटल वायर अछि ए टोटल वायर रो लेंथ जहा थिला ताको में कोन कले पांचटा इक्वल पीस रे कट कले तो ए टोटल वायर रो रेजिस्टेंस थिला R1. तो हम पांचटा इक्वल पीस करिबा तो ईच पीस रो रेजिस्टेंस केते हो R1/5 आसीबो. ठीक अछि ईच पीस रो रेजिस्टेंस केते आसीबो R1/5. ठीक अछि ओके ता माने आमे लिखि परिबा रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस ताकू हमें लिखुची R डैश सेटा केते हो सेटा हे जिवो R1/5 हे जिवो. ठीक अछि and all these 5 resistors are connected in parallel 1 2 3 4 5. All the 5 resistors are connected in parallel. Okay and all are identical कहीं ना सबू रेजिस्टर वैल्यू केते R1/5. so when you connect them in parallel तो the combination has resistance R2. ठीक अछि तो हमें जानि छे if identical resistors are connected in parallel तो से केस रे what is the total resistance ना individual resistance रो वैल्यू माने R डैश
divided by the number of registers. So we have 5 number of registers. ठीक है तो आम पाखे 5टा register अच्छी, all are identical और each having value r dash बा r1 by 5. तो equivalent केते हबो सेटा हे जिवो r dash by 5 हे जिवो. ठीक है तो r dash केते r1 by 5 by 5 तो हे जिवो r1 by 25. तो हमें कौन देखले एठी R2 केते R2 होची R1 by 25. तो हमको बाहर करियर अछि R1 is to R2 बा R1 by R2. तो केमि बाहर करिबा 25 को नै आसीबा लेफ्ट साइड को R2 डिवाइड कर दबा एंड पाई जिबा R1 by R2 इक्वल टू 25. ठीक अछि सो द आंसर विल बी 25. R1 is to R2 is equal to 25. सो स्टूडेंट्स देखो एठी हमें गोटे जनरल फार्मूला डिराइव करिबा. से जनरल फार्मूला कोन ना एठी कौन कहितला ना द वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस. ठीक अछि तो हमर आंसर केते आसला 25 आसला. जदी कहिथिबो ए वायर इज कट इनटू n नंबर ऑफ इक्वल पीसेस. ठीक अछि n टा 7 हे पारे 8 हे पारे 10 हे पारे 12 हे पारे 100 भी हे पारे. तो जहा वैल्यू हो if the wire is cut into n number of equal pieces तो से केस रे कोन हबो ना each piece रो resistance केते हे जिवो r1 by n हे जिवो. सपोज इनिशियली जो वायर थिला से वायर रो रेजिस्टेंस ला r1. so if I cut the wire into n number of equal pieces each piece रो resistance केते हे जिवो सेरा हे जिवो r1 by n हे जिवो. and we have n number of such pieces. And if I connect them in parallel, if R2 is the equivalent resistance, तार value कितना है? तार value है जो R dash by n. A number of identical resistors in parallel. So what is the equivalent resistance? R dash by n. What is R dash? R1 by n by n. इधर है जो R1 by n square. So R1 by R2 इधर है जो n square. R1 by R2 equal n square. तमने जदि हमें गोटे वायर को 5टा इक्वल पीस करूचे ताले and then we are connecting all the pieces in parallel तो से केस रे इनिशियल रेजिस्टेंस आ कोन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तार रेशियो केते आसीबो n स्क्वायर आसीबो. हमें यदि ताको 5 पीस करूचे तो 5 रो स्क्वायर केते जो 25 हे जिवो. इफ वी आर मेकिंग इट 10 नंबर ऑफ पीसेस तो 10 रो स्क्वायर केते 100 हे जिवो. If we are cutting it into 12 number of pieces, the R1 by R2 केते आसीबो 12 रो square that is 144. So this is the common formula, but this is the general formula, and just by putting the value of n, you can easily find the ratio. So that's how you can solve this question. And now we'll go to the next one. So now look at the next question. Question कौन देइछि a wire of resistance R is bent in the form of a circle. Find the resistance between its diametrically opposite points. तो क्वेश्चन कौन देइछि जे हम पाखरे गोटे वायर थिला and this wire has a resistance कते R. तो एबे में को करबा एबे में ए वायर को बेंड कर देबा. केमति बेंड करबा इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल. ठीक अछि गोटे सर्कुलर शेप ताको दे देबा. ठीक अछि तो कौन पचारछि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स. तो जदि मु दीरा पॉइंट चूज करिबी which are diametrically opposite ता माने जदि हम याको जॉइन कर देबा this line becomes the diameter of the circle. तो A and B are diametrically opposite point. तो ए दुईटा पॉइंट भितरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते आसीबो. तो ए क्वेश्चन में केम सॉल्व करबा देखो जदि हमें ए वायर को गोटे बेंड कर दोचे इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ताले ए सर्कल रो सर्कमफरेंस केते आसीबो इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. ए वायर लेंथ जहा ए सर्कल रो सर्कमफरेंस है. ठीक अछि ओके ए आउ बी दे आर डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स. तो कौन पचराई छी फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स. तो जो दुईटा पॉइंट भितरे पचारि थिबो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कौन करबा इमेजिन करबा एठी गोटे बैटरी लागि छी. इमेजिन दैट ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ठीक अछि सो अबे कौन हम देखो एटा हे जिवो गोटे रेजिस्टर. ठीक अछि
अपर पार्ट एटा है आ गोटे रेजिस्टर तो अपर पार्ट रो लेंथ जहाँ लोअर पार्ट रो लेंथ से कहीं एटा हूँ डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट एटा हूँ गोटे हाफ एटा हूँ आ गोटे हाफ ठीक अच्छे तो यही पार्ट रो लेंथ जहाँ यही पार्ट रो लेंथ से ताने आम कौन कहले जे ये जो दीटा पॉइंट आम चूज करेचे से दीटा पॉइंट कौन करुच्ची ना से सर्कल को दुईटा इक्वल हाफ रे डिवाइड करुच्ची तो जदि टोटाल वायर बाय टोटाल सर्कल रेजिस्टेंस के आर हुए तो जो अपर पार्ट रहा अपर पार्ट रो रेजिस्टेंस के आसो आर बाय टू आसो आ लोअर पार्ट भी के आसो से आर बाय टू आसो ठीक अच्छे ताने द फिगर कैन बी ड्रोन लाइक दिस आर बाय टू इठी अच्छी आर बाय टू ठीक अच्छे एंड आम ये कौन करे गोटे बैटरी लगे ओके तो से पचारि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एटा हूँ पॉइंट ए एटा हूँ पॉइंट बी ठीक अच्छे सो वी हैव टू रेजिस्टर्स r by 2 they are identical we have two number of resistors and they are in parallel तो यही केस रे आर पी केते आसीबो एटा आसीबो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बाय 2 बिकॉज वी हैव आइडेंटिकल रेजिस्टर्स तो एटा है जीवो r by 4 केते आंसर r by 4 आसी जीवो ठीक है किंपा तमे चाहिले कोन करबो this into this by this plus this कर दो आंसर पाइ जो so the answer will be r by 4 ठीक अछि so students आज वीडियो रे आमे एतिकी क्वेश्चन सॉल्व करिबा I think I have solved 5 to 6 questions and these are very important questions तो आहुरी भी बहुत टाइप रा क्वेश्चन अच्छी बुक रे you can refer to your reference book also your NCERT book तो ट्राई करो जते तमे मैक्सिमम क्वेश्चन करि परिबो दैट विल बेटर तो आमे आउ गोटे वीडियो रे कोन करिबा MCQ सॉल्व करिबा ठीक अछि टिके हाई लेवल क्वेश्चन हबो माने मे बी NTSC लेवल हो किंबा टिके ऑब्जेक्टिव टाइप रे में क्वेश्चन सॉल्व करिबा इन द मे बी द नेक्स्ट वीडियो किंबा मु आउ गोटे सेपरेट गोटे वीडियो आनिबी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर तबे वन बाय वन कोन करिबा किछि किछि कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन करूचे तो नेक्स्ट क्लास रे मे बी आमे गोटे टॉपिक सारिबा जोटा होची द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ताको सरला परे आमे गोटे डेडिकेटेड वीडियो करिबा फॉर न्यूमेरिकल ठीक है जेमति आमे आज बेसिकली आमे डिस्कस कले अबाउट व्हाट अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो से भली आमे गोटे वीडियो बनेबा जोथि के आमे होल चैप्टर रो जा सब कांसेप्ट अछि से सब कांसेप्ट को यूज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस माने एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आमे डिस्कस करिबा सो ठीक अछि I hope that you have understood all the solutions of all the questions that I had discussed today but still if you have any doubt then you can ask me in the comment section so again we will meet in the next video so till then have a nice day and bye bye.